अपनी इस खोजी छानबीन में आगे हम पहुंचे केरल राज्य के एर्नाकुलम में स्थित हिंदू हेल्पलाइन सेंटर में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सिजित से। सिजित ने हमें बताया कि वो किस तरह से लोगों को मुसलमान और जिहाद के नाम पर डराने का काम कर रहा है। उसने कहा, जिहाद विल कम टू योर डोर स्टेप टू यू टुडे और टुमारो। इट मे बी एज योर डॉटर, एज योर सिस्टर, और योर वाइफ, or your mothers, so careful yourself. We have to create a true fear in the society. On a primary level, there are a lot of classes. There are the Hindu organizations and the religious organizations and caste organization of Hindus are working in that. They are creating classes. But more than that, we are I don't know how to say that, but we are successful in creating fear. Okay. No, that is very important. We are successful in creating fear, but just saying that, what people say, why should I fear, why should I feel? It's not anyway, that why the girl is like that. Why, who asked her to go and love and marry? Why should I bother about that? That was a question before. What we said to them is, you don't think about that, because jihad will come to your doorstep today or tomorrow. It may be as your daughter, as your sister, or to your wife, or to your mother. It has no age limit. So be careful now itself. That is us. We are able to create a fear in the society, or a true fear in the society about the attitude of Muslims. सिजित ने हमें बताया कि वह दंगा कैसे फैलाता है। We cannot initiate a riot. What I can do is I can make all the circumstances ready. I can just initiate the people. I can just irritate the people. We cannot initiate a riot. That never happens. What only if I am a person who want to make riot, I can't just make say Hindus and Muslims, you just do it. They won't do it. No community will do that. What I can do is I can make all the circumstances ready. I can just initiate the people. I can just irritate the people about this, and the incident has to happen itself. That's the same thing happened there. सिजित ने हमारी बातचीत के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा किया। सिजित ने हमें बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग काउंसलिंग के लिए लड़कियों को लेकर आते हैं। काउंसलिंग के साथ साथ क्षितिज डॉक्टरों के साथ मिलकर इन लड़कियों के ताजा याददाश्त को मिटा देता है। क्षितिज ने कहा, वी हैव मेडिकल पीपल टू जस्ट इरेज द रिसेंट मेमोरीज। So you can part of that. Yeah, but I don't know Malayalam. The people are coming from to get counseling here. Yeah? So they're coming, like they're physically coming. I thought helpline mein they just call. No, just come here, stay here. Oh, so and with what kinds of problems do they come all the way here? Love jihad only. Oh God. But then how are you able to help in cases which are that far away? So like then you use your network and you tell them. Counseling, for counseling. Okay. Because we have So people desperate the girl, like the girl, they bring the girl and then okay. When we have medical people, we can just erase their recent memories. Yeah? But how can that happen? Yeah, medicines. Just go and try it at Google. Rubbish, I will Google it right now. So you have medical people who can erase recent memories. Yeah. जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, हमने अपनी इस तहकीकात में लव जिहाद के दो मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहला लव जिहाद की सच्चाई और दूसरा लव जिहाद के मामलों की असलियत। इससे पहले हम आपको लव जिहाद की सच्चाई को दिखा रहे थे। आइए अब हम आपको लव जिहाद के मामलों की असलियत बताते हैं। कोबरा पोस्ट की टीम ने लव जिहाद के मामले की सच्चाई को जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया। कोबरा पोस्ट के एसोसिएट एडिटर ने प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों का दौरा किया। 2014 के उपचुनाव के दौरान इन दोनों जिलों में लव जिहाद के दो मामले सामने आए थे, जिसमें से एक मामला मेरठ जिले के खरखौदा थाने में और दूसरा मामला मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में दर्ज हुआ था। मामले की वर्तमान स्थिति और वास्तविकता जानने की इस तहकीकात में हमने जांच अधिकारी और पीड़ित पक्ष के साथ साथ वहां के लोगों से भी इस मामले पर बात की। हमारी तहकीकात में सामने आया कि लव जिहाद के इन दोनों मामलों में पीड़ित लड़की अपना बयान बदल चुकी है। एफआईआर के समय बयान में जहां पीड़ित लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन और बलात्कार की बात कही थी, वहीं बदले हुए बयान में सब कुछ अपनी मर्जी से होने की बात कही है। मीरापुर मामले में जहां आरएसएस का और शिवसेना का नाम सामने आया, वहीं खरखौदा मामले में हिंदू जागरण मंच, शिवसेना और बजरंग दल का नाम सामने आया है।
दोनों ही मामलों में पैसे और संपत्ति विवाद को मुख्य वजह बताया गया है। मीरापुर मामले में सीधे तौर पर बलवीर गोस्वामी नाम के एक पत्रकार का नाम भी आया है। खरखौदा मामले में दर्ज एफआईआर और पीड़ित लड़की के बयान में काफी असमानताएं हैं। दोनों ही मामलों में पीड़िता ने आरोपी के साथ पहले से ही संबंध होने की बात स्वीकार की है। मीरापुर के लोगों ने भी लव जिहाद के मामले को नया और गलत बताया है। हमारे पास तो हिंदू मुस्लिम सब भाई आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं। ये भी क्या ये तो बाहर के लोग, जो कुछ बाहर के लोगों का इंटरएंगल होने की वजह से जो वारदात हुई या उनके आने की वजह से तो जो माहौल बिगड़ा वो कुछ समय के लिए बिगड़ा था। अब ऐसा नहीं है कि अब ऐसी स्थिति है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब हैं और हम लोग सब चीज़ एक तरह से मनाते हैं। जैसे हमारी दिवाली बनती है, ऐसे ईद बनती है, ऐसा कुछ नहीं। ये पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है, अब भी हुआ है। तो ये अब जो बीच में हालात बिगड़े थे उसके लिए इसका कोई हमारे यहाँ प्रभाव नहीं है, उसको तो हम लोगों ने मिटाना है और इसी तरीके से मिटेगा। हम आपको बता दें कि ये दोनों मामले अभी कोर्ट में ही लंबित हैं, इसलिए हमारा किसी भी नतीजे पर पहुंचना न्यायालय की अवमानना होगा। इसलिए हमने बिना किसी नतीजे की बात किए अपनी तहकीकात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में अभी दंगों की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि लव जिहाद ने इस जिले के अशांत माहौल में फिर से आग लगाना शुरू कर दिया। लव जिहाद नाम का यह जिन्न यूपी विधानसभा उपचुनाव के समय उभर कर सामने आया। विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस मुद्दे को खूब हवा भी दिया। इस जिले की एक ऐसी ही घटना सितंबर 2014 को सामने आई। एक लड़की काजल ने मेरठ डीआईजी के सामने शिकायत की कि वो एक निजी अस्पताल में काम करती है, जहां का मालिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसके साथ रेप किया और फिर डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह किया है। इस मामले में कुल 11 लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 376, 377, 323, 295 का और 506 के तहत मीरापुर थाने में मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी अब्दुल कलाम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। हमारी टीम ने जब इस मामले की तहकीकात की तो इस मामले की सच्चाई परत दर परत निकलती चली गई। हालांकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए हमारा किसी भी नतीजे पर पहुंचना कोर्ट की अवमानना होगा। हमारे रिपोर्टर ने इस मामले की जांच में सबसे पहले मीरापुर थाने का रुख किया। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई महिला कांस्टेबल दीपा सिरोही से। दीपा सिरोही ने हमें चौंकाने वाली बात बताई। दीपा ने हमें बताया कि पीड़ित महिला ने अपना बयान बदल दिया है और उसने डॉक्टर कलाम के फेवर में बयान दे दिया है। दीपा ने कहा उसने बयान अब उसी के उसमें दे दिए है ना, अब्दुल कलाम के हक में। बयान अब उसी के उसमें दिए ना, अब्दुल कलाम के हक में। अच्छा, उसके क्या फेवर में दे दिए? हाँ, क्या में दे दिए। क्या दिए? बोल दिया कि मुझे बहला फुसला कि मतलब लोगों ने मतलब ये धर्म के हिसाब से, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, कि तूने मोहम्मद से शादी क्यों कर ली, ये वो मतलब इस तरीके से मुझे बहला दिया, फुसला दिया था। मैं मतलब लोगों के बहकावे में आ गई, इसलिए मैंने मतलब बयान दे दिया। नहीं तो उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए मतलब बहलाया फुसलाया था या मतलब? हाँ, शादी वगैरह जो भी मतलब टोटल जो केस हुआ था ना। हाँ। नहीं, जो केस करवाया गया हुआ था ना अब्दुल कलाम के खिलाफ। अच्छा, अब्दुल कलाम के खिलाफ जो केस कराया था वो उसमें मुझे लोगों ने बहलाया फुसलाया मुझे। अच्छा, मतलब जैसे कि हिंदू हूँ मैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वैसा किया कि तू हिंदू है, इस तरीके से। अच्छा, कि तू कोई संगठन या किसी के लोग ऐसा कर रही है, क्या कहेंगे लोग। तो उसमें उसने दे दिए बयान वगैरह। तो कोर्ट में बयान दे दिए अभी या वैसे मतलब यहाँ इंटरनल थाने वगैरह में दिए? मेरे ख्याल से 164 भी दोबारा हो गया। अपनी तहकीकात को पुख्ता करने के लिए हमने मीरापुर के थानेदार कमल सिंह यादव से इस मामले के बारे में जानना चाहा। कमल सिंह ने जो हमें बताया वो इस मामले को पूरी तरह से खोल कर रख देने वाला था। एसएचओ साहब ने हमें बताया कि इस बहुचर्चित मामले में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही पीड़िता के साथ रेप हुआ है। इन्होंने हमें एक पत्रकार का भी नाम बताया जिसने इस मामले को हवा देने का काम किया था। इस महिला को बहकाने का काम भी इसी पत्रकार ने किया था। कमल सिंह ने बताया कि लड़की ने कहा कोई मैटर नहीं है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मुझे ये लोगों ने बहका दिया, पत्रकारों ने। मैं फिर से अपने आ गई हूँ पति के पास, डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास, और इनको जमानत दे दीजिए। सर, अभी इसमें लेटेस्ट क्या है?
इसमें लेटेस्ट ये है जी कि साहब वो महिला जो थी जी। जिसका नाम था हम्म। वो पुनः वापस चली गई डॉक्टर के यहाँ। अच्छा। नाउ शी हैज गिवन स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम ओके। एंड सी ओके दैट आई हैव बीन नॉट। अरे 2 मिनट रुक यार, कोई बात कर रहे हैं। हेलो। वहीं फिर पहुंच गई, डॉक्टर के पास है। ठीक है। उसने कहा मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी ने नहीं कराया। अच्छा, धर्म परिवर्तन का कोई मैटर नहीं है? कोई मैटर नहीं है, और मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। अब मैं मुझे ये लोगों ने बहका दिया, पत्रकारों ने। अच्छा। मुझे भूखा मारना चाहते हैं, और मैं फिर से अपने आ गई हूँ पति के पास, डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास। ठीक है। तो इसको जमानत दे दिया, अदालत ने जमानत दे दी। अच्छा, तो बाहर आ गए जमानत? नाउ ही इज आउट ऑफ जेल। राइट। और उसने एफिडेविट दे दिया, और ये एफिडेविट तो नहीं है, कोई रखा तो नहीं, चले गया हूँ केसदारी के साथ कि ना मुझे किसी ने धर्म परिवर्तन कराया, ना मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई, ना रेप हुआ। मैं अपनी मर्जी से जो अपनी मर्जी से जब। तो मतलब ये जितना भी हुआ था ये सब मतलब किन लोगों के द्वारा, संगठन या कोई मतलब किन के द्वारा, मतलब ये धर्म परिवर्तन? पत्रकार था। अच्छा अच्छा। वो इसको बहका के ले गया। ही वाज बाईकास्ट होगी। ओके। क्या नाम था उसका? गोस्वामी था। वो भी गोस्वामी वो थी, गोस्वामी हुआ था। अच्छा। तो किसी तरह इसके लारे लगा, उसको बहका करके, और इस तरह का नाटक ड्रामा आईजी के यहाँ। वर्किंग लेडी थी ना ये भी। अच्छा अच्छा, इसको ले जाके मैं प्रेजेंट कर दिया आईजी साहब के साथ, शर्मा जी के यहाँ पे। उनकी छोटी मोटी डिस्प्यूट हुई, तो उसने उसका फायदा उठा के वहाँ ले